अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, sir. कैसी जी हैं वाइट मैडम? Hassan has also joined in. Assalamu alaikum, sir. जी वाइट साहब कहना आप सब बाकी लोगों को भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं? खैरियत से हैं? I think हमारे सारे speakers have joined in. Participants जैसे जैसे आते जाएंगे, we'll enter them in the conference. Let's formally begin the conference without further ado. So first of all, assalamu alaikum to everyone who is in the conference right now. I would like to welcome you all on behalf of Kulsum International Hospital. Since आप सबको पता है कि Kulsum International Hospital is a prestigious project of SAF Group and it's located in the heart of Islamabad. And we offer specialties limiting from cardiology to neurology. You just name it and we have it. So आज का जो मौका है, आज इस virtual conference में जो हम इकट्ठे हुए हैं, that is on the occasion of World Blood Donor Day 2022. और आज का जो हमारा थीम है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का, दैट इज डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, दैट इज WHO थीम. तो हर साल जो खून का आलमी दिन मनाया जाता है, डोनर्स का आलमी दिन मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है ताकि हम सेफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस को उजागर कर सकें. प्लस जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हमारे लिए खिदमात अंजाम देते हैं, जो वो अनसेड हीरोज जो हमारे लिए खिदमात अंजाम देते हैं, उनको हम लोगों तक पहुंचा सकें और उनकी इस काविश को हम एक खराज तहसीन पेश कर सकें. So today we have 3 speakers with us for the conference. Brigadier Nadir Ali, Assalamu alaikum sir. He's consultant hematologist at Kulsum International Hospital. He has also worked as a molecular scientist and has 20 years of experience as consultant hematologist in Pakistan Armed Forces. Welcome sir, welcome aboard. We also have with us Professor Hassan Abbas Zahir. He is a name जो कि transfusion medicine में whoever has heard transfusion medicine का नाम उसने पाकिस्तान में सर का नाम जरूर सुना होगा. He is currently serving as advisor to WHO's advisory group on blood regulation, availability and safety. And he is the pioneer of Pakistan's national blood transfusion program. And he has also served as chairman Islamabad Blood Transfusion Authority. Welcome aboard, sir. Thank you. I would also like to welcome Ms. Aisha Mahmood. She is President FAID, which is the Patient and Parents Association for Better Treatment, Financial and Medical Aid of Thalassemia Patients. And she, being a thalassemia patient herself, is an expert patient certified by TIFF, which is Thalassemia International Federation, and has also represented Pakistan on various national and international forums. So let's formally begin the conference. I would like to request Brigadier Nadir Ali, sir, please आप welcome address से start करें and please start with your presentation, with your keynote presentation on the clinical side and myths of blood transfusion and blood donation. Please, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस फोरम पे खुश आमदीद कहता हूँ और ये हम सब के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि हम इस फोरम पर इकट्ठे हैं. और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनेशन के लिए काम करना या इस मकसद को लेकर निकलना ही एक बहुत बड़ा काज है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हमसे इस चीज़ का और इस चीज़ के लिए काम ले रही हैं. जैसे कि आप सबकी बहुत कंट्रीब्यूशन है और मैं भी आपके साथ आपका टीम मेंबर भी रहा हूँ और हमने आप सबको काम करते हुए देखा है और आप सब की वजह से पूरे पाकिस्तान में ब्लड डोनेशन का नाम है और ख़ास तौर पे सर हसन अब्बास ज़हीर का नाम जो है, मैं यूँ समझूंगा कि अनथक मेहनत थी, एक बहुत बड़ा काज लेकर ये निकले और मैं उस वक़्त को भी जानता हूँ जब बहुत कम लोग इनको जानते थे. और इसी तरह से आप सबकी ही अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है. तो मैं इस फोरम पे आप सबको वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये कुसुम इंटरनेशनल के लिए भी एक बड़ा दिन है कि आज हम इस दिन का आगाज़ कर रही हैं. और जो ब्लड डोनेशन है ये बेसिकली क्यों की जाती है
ये तो आप सभी जानते हैं कि ब्लड डोनेशन का मेन मकसद जो है वो ये कि किसी इंसान को खून लगाया जाए किसी ऐसी बीमारी के लिए जिस बीमारी के लिए उसको खून की ज़रूरत है। आमतौर के ऊपर जिन बीमारियों के लिए या जिन वजूहात की बिना पे खून या खून के अज्जा लगाई जाती हैं वो बहुत सीरियस होती हैं। इनको हम दो हिस्सों में कर सकते हैं, या तो वो लोग जिनका इमरजेंसी में खून बह रहा होता है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, कोई खातून है लेबर में है और उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या कोई ऐसा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसा सर्जरी है जो कॉम्प्लिकेट हो गई है। एक तो वो लोग हैं और दूसरे वो लोग हैं जो कि ब्लड की बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर है या बड़ी-बड़ी और बीमारियां हैं, जिनमें उनका खून बन नहीं रहा होता या उनके खून जो है, खून में वो अज्जा कम होते हैं जिन अज्जा की वजह से खून गर्दिश कर रहा है। तो ये तमाम वजूहात ऐसी वजूहात हैं जो जिनमें कि आपका दिया हुआ खून का अतिया जो है उनकी जान बचा सकता है। तो खून देने के मुतल्लिक बहुत सारे जो हैं लोगों के दिल में जो है वो वसवसे हैं, ख़्यालात आते हैं लोगों को। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें, तो इस चीज़ को वे एंड बैलेंस करें कि जो खून को के लगाए हुए अतियात हैं, जो खून दिया जाता है, जिस वजह से खून दे रही हैं हम, वो वजह इतनी बड़ी है कि अगर आपको कोई छोटा-सा इससे नुकसान हो भी जाता है, तो आपने दूसरे इंसान की तो जान बचा ली है, आपने दूसरे इंसान को तो बहुत बड़ी एक नेकी कर ली है। तो हम देखती हैं कि कैसे ये मुमकिन है कि एक इंसान की तो आप जान बचा रहे हैं, आपको थोड़ी-सी तकलीफ हो रही है। अच्छा, खून देने से वाक़ई ये आपकी ज़हन में ये ख़्याल आता है कि खून देने से कुछ नुकसान हो सकता है, तो वाक़ई ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कमज़ोरी-सी महसूस होती है खून देते वक़्त। लेकिन आम तौर के ऊपर आपका दिया हुआ जो खून है, वो 24 घंटे, 48 घंटे में खून अपनी जो मिक़दार है उसका वो पूरा कर लेता है। इसकी वजह से जो है वो खून के अंदर जो कमी है, वो आपकी पूरी हो जाती है। कुछ लोगों को इससे ज़्यादा दिन भी कमज़ोरी-सी महसूस होती है, तो वो कमज़ोरी अमूमन आयरन की डेफ़िशिएंसी की वजह से होती है। तो आयरन आप जब देते हैं, कुछ लोग जो हैं, जो बार-बार खून दे रहे होते हैं, तो वो उनको आयरन दे दिया जाए, अगर आयरन की गोलियाँ खा लेते, तो उससे भी उनकी वो खून की कमी पूरी हो जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोचती हैं कि अगर हम खून देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता कि खून देंगे तो उससे आपको कमज़ोरी हो जाएगी। आप खून देंगे तो उससे आपका जो पुराना खून है, जो खून है, वो नए खून में तब्दील हो जाएगा, बेहतर खून में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि खून देने के साथ हमें जो है, वो हमें इन्फेक्शन हो जाएगी। तो खून लेने के मराहिल जो हैं, जो प्रोसेस हैं, वो इतनी साफ और एसेप्टिक होती हैं कि उनसे आपको इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं है। खून बिल्कुल ऐसे तरीकों से लिया जाता है जिससे कि खून बिल्कुल साफ रहता है और आपको भी उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, अगर हम खून देंगे तो इसके साथ हमें बेहोशी तारी हो जाएगी या हम गिर जाएँगे या हमें गशी तारी हो जाएगी। तो ऐसा बहुत कम लोगों को होता है। उन्होंने सुना हुआ होता है कि फलाँ ने खून दिया था तो वो गिर गया था। ये नॉर्मल है, किसी भी इंसान को किसी भी इंजेक्शन लगने से भी हो सकता है, लेकिन आम तौर के ऊपर खून देने से जो है ये ऐसा नहीं होता। बल्कि अगर आप खून देने गए हैं, आपका इंटरव्यू होता है और उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं, आपका खून ले लिया जाता है और आपका खून किसी को लगाया जाता है, इसका ये मतलब है कि आप इतने फिट हैं, आप इतने सही हैं कि आपका खून दूसरे को लगाया जा रहा है, आप बिल्कुल बीमारी से पाक हैं, बीमारी से साफ हैं। और एक चीज़ और भी कही जाती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हमने ये खून दिया और बार-बार हम खून देंगे, तो खून को देने से शायद ये हमारी जो खून है, ये किसी और को लगेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपके खून के लगने से दूसरे को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे की जान बच रही है, दूसरे की आप लाइफ़ सेव कर रहे हैं।
I think थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पॉज हो गई है. We'll wait for a few seconds. If it continues, if it doesn't, तो we'll proceed. I think इस दौरान आप जी सर. अगर ब्रिगेडियर साहब का कनेक्शन ठीक नहीं है तो दूसरे पार्टिसिपेंट्स Yes, we can restore the connection in the meantime. Let's start with the next presentation, which is by Professor Hassan Abbas Zahir. Sir, since you have worked in the blood transfusion sector for a lot of time, तो आप हमें बेहतर बता सकेंगे about the challenges to VNRBD culture. जैसे ब्रिगेडियर साहब was just telling कि voluntary blood donation जो है इसकी clinical फवायद भी होते हैं, इसके बारे में बहुत सारी myths हैं. So would you please like to throw some light on the challenges of VNRBD culture in Pakistan and in South Asia? So, sir, please. जी थैंक यू वेरी मच कायनात. पहले तो मैं कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस वेबिनार पे मदऊ किया. मुझे याद है पास्ट में भी कुछ साल पहले हमने 2-3 दफा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के ओकेजन पे ही. जी सर. तो मैं जैसे कि कह रहा था कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये बहुत ही अहम दिन है ब्लड सेफ्टी सेक्टर में. हर साल 14 जून को ये दिन मनाया जाता है पूरे दुनिया में. और इसको मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि ग्लोबल सतह पे अवेयरनेस बढ़ाई जाए सेफ ब्लड और सेफ ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में. और इसके साथ साथ जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की कंट्रीब्यूशन है पूरे ब्लड के निज़ाम को चलाने में, उसको भी हाईलाइट किया जाए. और इसके साथ साथ जो मुल्कों में कौमी सतह के इदारे हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के निज़ाम को चला रहे हैं, जो ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी खिदमत को सराहा जाए. तो हर साल ये दिन पूरी दुनिया में जैसे मनाया जाता है, तो पिछले 10-12 सालों से पाकिस्तान में भी ये हमने मनाना शुरू किया जब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोग्राम जो है वो वजूद में आया 2010 में. तो उससे पहले जो ब्लड का निज़ाम था पाकिस्तान में वो फ्रेगमेंटेड सिस्टम था. जगह जगह छोटे और बड़े ब्लड बैंक्स खुले हुए थे जहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज मुहैया थी. और वॉलंटरी ब्लड डोनर्स बहुत कम होते थे. ज़्यादातर ब्लड डोनेशंस जो हैं वो जो रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर्स हैं उन पे इन्हिसार किया जाता था. मगर जब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम वजूद में आया तो उसके बाद हमने ये कोशिशें शुरू की कि पार्टनर्स के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन की, पार्टनरशिप डेवलप की, लिंकेजेस डेवलप किए और बाकी और बहुत सारे काम ब्लड सिस्टम्स को बनाने में किए. उसमें वॉलंटरी डोनेशन की अहमियत को भी उजागर किया. और उसमें सबसे अहम काम जो था वो ये था कि 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे धूमधाम से मनाया जाए. तो ये हम एक्टिविटीज़ करते थे इस्लामाबाद में भी, दूसरे शहरों में भी, और बाकी भी पार्टनर्स वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते थे. और ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो सब लोग उनको करके उसकी जो एविडेंस थी उसकी फोटोग्राफ्स, वीडियोस और छोटी-छोटी रिपोर्ट्स बना के हमसे शेयर करते थे. और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में शाया करते थे, इलेक्ट्रॉनिकली भी, न्यूज़लेटर के फॉर्म में, फेसबुक पे और हार्ड कॉपी में भी एनुअल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की रिपोर्ट के तौर पे. तो इससे ये फ़ायदा होता था कि आहिस्ता-आहिस्ता वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस जो थे उनकी शरह में इज़ाफ़ा हुआ पाकिस्तान में. और फिर रिपीट ब्लड डोनर्स की भी शरह में इज़ाफ़ा हुआ. और इसके साथ-साथ एक बहुत अहम काम जो हमने किया वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ाने में, वो फेसबुक के साथ हमारी पार्टनरशिप थी, जो 4-5 साल पहले ग़ालिबन 2018 में शुरू की हमने. और उस वक़्त फेसबुक ने एक वो बनाई थी, उसको क्या कहते हैं, फीचर. क्या ना, फीचर. फीचर, हाँ. हाँ जी. फेसबुक ने एक फीचर बनाया था जिसके ज़रिए वो कनेक्ट करते थे उन लोगों को जिनको खून की ज़रूरत है, उन लोगों के साथ जो खून दे सकते हैं.
तो पीपल हु नीड ब्लड वर कनेक्टेड टू पीपल हु कैन डोनेट ब्लड। तो ये फीचर लेके वो हमारे पास आए से ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम में, और बहुत फख्र से हमें बताया कि ये चीज़ हमने बनाई है और आप हमारे साथ ताउन करें। और हम पायलट कर रहे हैं 4 मुल्कों में, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो इस फीचर को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं। तो उस फीचर को जब हमने देखा तो कायनात भी हमारे साथ थी, सायरा भी थी, और ब्लड प्रोग्राम का पूरा अमला भी था। तो हमने अपना उसमें टेक्निकल फीडबैक दिया कि इसमें काफ़ी गैप्स और डेफिशिएंसीज हैं, बल्कि उनकी स्ट्रेटजी जो है उसमें कुछ बुनियादी नकाइस हैं। तो ये हमने उनको पॉइंट आउट किए और उनको बताया कि इसमें आपने सिस्टम को कम्प्लीटली इग्नोर किया है, और जो आपने फीचर बनाया है उसके मिसयूज के भी पोटेंशियल हैं, और इसको बेहतर किया जा सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको कन्विंस किया, और वो जो फीचर था वो अब वो बहुत अच्छी फॉर्म में आ गया, और उसमें सिस्टम भी इंक्लूड हो गया, और सिस्टम और वॉलंटरी डोनर्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो गए, और जो यूजर थे यानी पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज, उसको इस सिस्टम से बाहर कर दिया, जैसे कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं। इसके अलावा हमने फेसबुक को जो इंटरनेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम्युनिटी है उनके साथ भी लिंकअप कराया, जिसमें WHO, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट सोसाइटी, AABB, ISBT और इस तरह के इदारे शामिल हैं। तो अब ये फीचर जो है फेसबुक का, जो उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ब्राज़ील में पायलट लॉन्च किया था, अब वो पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये फीचर इस्तेमाल हो रहा है, बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है, और अमेरिका में भी हो रहा है, और बुनियादी तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको बहुत पज़ीराई मिल रही है। शुरू में जो 4 मुल्कों में जहाँ ये फीचर हुआ था इंट्रोड्यूस, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क था जहाँ पे नेशनल काउंटर पार्ट अवेलेबल था। इंडिया, बांग्लादेश और ब्राज़ील में कोई काउंटर पार्ट अवेलेबल नहीं था। इसका नतीजा ये था कि वो फीचर तो इस्तेमाल हो रहा था उन मुल्कों में, मगर फेसबुक को फीडबैक नहीं आ रहा था कौमी सतह का कि ये इसका फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो हमने फेसबुक के ये फीडबैक मुहैया किया, और फेसबुक ने हमारी इन खिदमात को बहुत सराहा, और उसके बाद हम पिछले साल दिसंबर तक फेसबुक के साथ ये काम करते रहे, और पाकिस्तान में इस फेसबुक फीचर को प्रमोट करते रहे, और ख़ासतौर से कोविड पेंडेमिक के दौरान ये जो फीचर है ये बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हुआ, और इन तमाम काविशों का नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान में वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस की जो शरह है वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गई है, और मज़ीद रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। सर, इसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सारी काविशों के बावजूद व्हाई डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं पाई जाती, रिलक्टेंस है स्टिल। तो वुड यू लाइक टू ब्रीफ दिस थिंग अप इन 2 लाइन्स और 3 लाइन्स? ये तो देखें एक ऑनगोइंग एक वो है जर्नी है, कि ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने ये काम कर लिया, लोगों को आगाही दे दी, और उसके बाद आप समझें कि ये काम खुद ब खुद चलता रहेगा। अगर ऐसा होता तो फिर हम सब लोग जो इस ब्लड सेक्टर में काम करते, हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती, लोग खुद ब खुद आते, वॉलंटरी तौर पे ब्लड डोनेट करते, और ये सारा कुछ चलता रहता। नेशनल ब्लड प्रोग्राम्स की भी नहीं ज़रूरत होती, और ब्लड बैंक्स खुद ही अच्छा काम करते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस एफर्ट होता है, और इसको जहाँ पे हमने छोड़ा था 2 ढाई साल पहले, उसके बाद शायद उस तरह से नहीं आगे बढ़ाया गया जैसे बढ़ाना चाहिए था। तो ज़रूरत इस बात की है कि सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम दोबारा वॉलंटरी डोनेशन और बाकी तमाम काम जो है ब्लड सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग का, वो उसी तरह से जारी व सारी रखे जैसे 2 साल पहले तक हम इस पे काम कर रहे थे, और इस पे पूरे जामे प्लान और स्ट्रेटजी इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाने की मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि काबिल और हुनरमंद और एक्सपीरियंस लोगों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए, और कोई वजह नहीं है कि अगर अच्छे कमिटेड लोग ब्लड प्रोग्राम में होंगे, तो ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का भी जो ग्राफ है हमारा मज़ीद ऊपर ना जाए। Thank you so much, sir, for giving us hope for a bright future for voluntary blood donations in Pakistan. Since we are talking about patients and voluntary blood donors, so it goes without saying that we should hear it from a person who experiences blood donation first-handedly. Ms. Aisha Mahmood,
आपने पाकिस्तान को वेरियस फोरम्स के ऊपर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है एंड यू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑन दिस एज वेल, सो वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू प्लीज। Assalamu alaikum. And thank you so much Kulsum International for giving me this opportunity. जैसे कि आपने कहा कि पेशेंट के तौर पे जो है वो मेरा पॉइंट डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जर्नी जो है वो 34 इयर्स ओल्ड है और अब तक तकरीबन 800 प्लस ब्लड बैग्स मुझे अब तक ट्रांसफ्यूज हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि 800 प्लस अननोन ब्लड हीरोज मुझे ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और उसमें ऐसा होगा कि ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये वो बीमारी है जिसमें अक्सर रिलेटिव्स भी आपका साथ छोड़ देते हैं और वो भी ब्लड डोनेट नहीं करते। तो इसमें वही लोग होते हैं जो वॉलंटियरली मुझे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की लाइफ में ना मेरे पेरेंट्स ने और ना मैंने किसी से कोई पेड डोनेशन करवाई और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे केसेस जो आपने जैसे बताया कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डिफरेंट फॉरम से पाकिस्तान को, तो हमें रिपोर्ट होते हैं कि जी वहाँ ब्लड बिक रहा था, हमसे मांगे गए इतने पैसे। और दौरान कोविड ऐसे केसेस हुए कि इजी पैसा कर दें हमें पेमेंट, हम आके डोनेट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहाँ पे जो है वो हमें पेशेंट और पेरेंट्स को आगाह करना पड़ा कि जी पेड डोनेशन कभी भी इनकरेज ना करें, आप वॉलंटियरली ब्लड डोनेशन की तरफ जाएं। और जैसे वो फेसबुक का फीचर आया उससे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अवेयरनेस हुई। और फिर जब सोशल मीडिया की थ्रू भी जो है वो लोगों में अवेयरनेस आई कि ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और इनको जो है वो नीड होती है ब्लड की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब थैलेसीमिया हो गया या फिर ब्लड डिसऑर्डर के दूसरे और पेशेंट्स हो गए, उन्हें सबको जो है वो नीड होती है एंड दे शुड डोनेट ब्लड। लेकिन आई वुड से कि स्टिल पीपल आर रिलक्टेंट और वो डरते हैं ब्लड डोनेट करते हुए। और कोविड में ये ज़्यादा भी हुआ कि हमें कोविड हो जाएगा या हम हॉस्पिटल विजिट करेंगे, तो ये सिनेरियो भी आया। लेकिन वहीं हमने लोगों को ये भी देखा कि कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया। जब सोशल मीडिया कैंपेन्स चली, जब मीडिया कैंपेन्स चली, तो बहुत ज़्यादा उसका जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट आया था। लेकिन आई वुड से कि स्टिल हम पेशेंट्स को अगर चले, आई वुड से कि रजिस्ट्री नहीं है, रफ बहुत रफ आइडिया अगर हम लेते भी हैं कि 1 लाख हमारे पास पेशेंट्स हैं, तो तकरीबन हमें 2 लाख बॉटल्स तो चाहिए पेशेंट उसको उनको कवर करने के लिए। लेकिन स्टिल हमारा पेशेंट जो है वो अंडर ट्रांसफ्यूज्ड है। वो क्यों अंडर ट्रांसफ्यूज्ड है? क्योंकि ब्लड नहीं है। और ब्लड कहाँ से आएगा? वॉलंटियरली। और वॉलंटियर्स बहुत कम आते हैं। जो रोड साइड्स कैंप लगाए जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में लगाए जाते हैं, आई वुड से कि वो इनफ नहीं है। एक आम इंसान को, एक आम शहरी को ये अपना फ़र्ज समझना चाहिए कि वो जाएं और जाके ब्लड डोनेट करें हम जैसे पेशेंट्स के लिए। और यहाँ गवर्नमेंट का मैंने रोल बहुत कम देखा है। जैसे कोविड के दरमियान में उन्होंने एक कॉलर ट्यून चलाकर, मैं कहती हूँ एक आम इंसान जो रोड साइड बैठा हुआ मोची भी होगा, उसके पास भी एक छोटा फ़ोन ज़रूर होगा, चाहे वो एंड्रॉयड ना हो, लेकिन उसने कॉलर ट्यून सुन के भी वो अवेयर हुआ कि कोविड क्या है, उससे मुझे कैसे महफूज रखना है और उसकी वैक्सीन्स क्या है। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ब्लड डोनेशन पे भी काम करे, कॉलर ट्यून्स होनी चाहिए, मीडिया पे इसके वो चलने चाहिए, अवेयरनेस के कैंपेन होने चाहिए, ताकि आम आवाम को शऊर हो कि जी ऐसी आवाम यहाँ एग्जिस्ट करती है जिसका सर्वाइवल ब्लड पर है और आप जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इट इज़ सेफ। और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, कॉलर ट्यून हो या सोशल मीडिया कैंपेन्स हो या मीडिया कैंपेन्स हो। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और पेशेंट के तौर पे हम बहुत ज़्यादा, मैं लकी हूँ, मेरा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ब्लड के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। और बेसिकली मैं जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वही हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो थैलेसीमिया सेंटर से ले रहे हैं जिनको सालाना 4, 8 या 12 डॉलर्स लाजमी देने होते हैं। वो कहाँ से लाएंगे? वो नहीं ला पाते क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली, जैसे मैंने बताया, कि बैकआउट कर जाती है इन बीमारियों में। उसके बाद वॉलंटियरली डोनर्स वो कितनों को जानते होंगे, वो रोड साइड खड़े होकर अपील ही कर सकते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते। या फिर हम जैसे फेथ एनजीओ के पास आ जाते हैं कि
कि आपका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है तो आप हमारे लिए अपील कर लें। आई बिलीव वॉलंटरली ब्लड डोनेशन पे बहुत काम होना अभी भी बाकी है। एज अ पेशेंट वी सफर अ लॉट। थैंक यू सो मच आयशा फॉर दिस डिटेल्ड ब्रीफिंग। इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में भी आपने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का एक्सपीरियंस किया है, प्लस यू हैव सीन कि इंटरनेशनली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं व्हेन यू गो ऑन द इंटरनेशनल फोरम्स। सो व्हाट डिफरेंस यू हैव सीन ओवर देयर? वहां पे एक्सेप्टेंस क्यों है ज्यादा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के कॉन्सेप्ट की? जैसे कि अगर यूएस यूके की बात करूं, ठीक है, मेरे पास इतनी शायद नॉलेज ना हो जितनी सर हसन मुझे शायद गाइड कर सके। रेड क्रॉस जहाँ इतना इफेक्टेड है वहाँ पर कि उनकी अपील्स चल रही होती हैं, जहाँ उनका ब्लड बैंक जहाँ उनका कम होने लगता है कि जी हमारे पास इस ग्रुप की जो है वो कमी आ रही है, हम एक अपील का एक वो देखते हैं कि आप आए प्लस ब्लड डोनेट करें। गवर्नमेंट की तरफ से भी उनकी अपील आ रही है, लातादाद लोग उसकी अपील कर रहे होते हैं कि आप आए और इट इज सेफ, इट इज ये, वो हर चीज को गाइड कर रहे होते हैं लम्हे बाय लम्हे कि जी आप आए और आके डोनेट करें। लेकिन यहाँ हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इस बारे में कोई बात नहीं करता। एक डॉक्टर्स बात करते हैं, पेशेंट बात करता है, कोई एनजीओ बात करती है, कोई हॉस्पिटल बात करता है, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं करता। सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए उस मौजूद पे, तो शायद आवाम के अंदर ये शऊर आएगा कि इट इज सेफ एंड वी कैन डोनेट। थैंक यू सो मच आयशा। आई बिलीव आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कॉन्टिन्यूस एडवोकेसी इज द की कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको सस्टेनेबली पाकिस्तान के अंदर हम फरोग दे सकें। ब्रिगेडियर नादिर अली हैज जस्ट जॉइंड इन। जो चीज़ हम पहले डिस्कस कर रहे थे, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर कि क्लिनिकल साइड जो है ब्लड डोनेशन की, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्लस हमने अभी कुछ मिथ्स के बारे में भी बात की है जो कि आम आवाम में पाए जाते हैं। तो सर वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट। सर, ओवर टू यू प्लीज। क्लिनिकली जो ब्लड डोनेशन है, इसमें जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड आपका चला जाता है और 500 मिलीलीटर या इससे कम वेस्ट ब्लड आपका बॉडी से चला जाता है, तो डेफिनेटली आपको ऐसे महसूस होता है कि शायद मेरा कीमती असासा जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसके बेनिफिट्स को जब हम वे एंड बैलेंस करती हैं तो डेफिनेटली ये एक आपने किसी इंसान की जान बचाई है, लेकिन आपको भी इसका एक बेनिफिट है कि आपके अंदर जो आयरन मेटाबॉलिज्म है वो रिन्यू हो जाता है। जो एक रिन्यूएबल आयरन है उसका पूल आपका बेहतर हो जाता है, बजाय इसके कि जो आयरन आपका डिपॉजिट हो रहा है जिस्म के बाकी हिस्सों में, वो वहां से निकलकर आपके रिन्यूएबल आयरन के पूल में आ जाता है। और इसके अलावा आप खुद को हेल्दी महसूस करती हैं जब आप ब्लड डोनेट करती हैं, और आपको ये महसूस होता है कि आप की मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रही है और आप एक कौमी खिदमत कर रही हैं या इंसानी खिदमत कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके बेनिफिट्स को जितना भी उजागर किया जाए वो कम है, लेकिन बेसिकली हमारी सोसाइटी में इसको कैसे लिया जाता है कि हमारी सोसाइटी में इसको एक बर्डन की हैसियत से लिया जाता है और सिर्फ उस वक्त डोनर आता है जिस वक्त उसके खानदान का कोई बीमार होता है। तो आप थोड़ी देर के लिए अगर सोचें कि जब आपके खानदान का कोई बीमार होता है और आप ब्लड देते हैं तो उस वक्त तो आपको कमजोरी नहीं होती, उस वक्त तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती, उस वक्त तो आपको कोई भी ऐसा महसूस नहीं होता कि आप के जिस्म में से कुछ कम हो गया है। तो जब आप इस चीज़ का सोचते हैं कि मैंने वॉलंटरली देने जाना है, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें आपको महसूस सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपके अंदर वो जज्बा नहीं होता जो अपने एक रिलेटिव के लिए होता है या अपने एक खानदान के बंदे के लिए होता है या अपने खानदान में अपने आप को वो करने के लिए होता है। सो मेरा ये ख्याल है कि ना, ये जितनी भी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं या सोची जाती हैं, वो उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी अपने ही वहम होते हैं, तवहम होते हैं। और अगर हम एक नज़र से सिर्फ इतना ही सोच लें कि हम क्या करने जा रही हैं, तो शायद हमारी ये दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो मैं इस फोरम के तवज्जुह से आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जैसे आप लोगों ने इस मकसद की अलमबरदारी की है, तो आप इस मकसद को आगे लेके चलिए, हम आपके साथ हैं।
बहुत शुक्रिया कायनात, आपका भी बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for such comprehensive briefing voluntary blood donation के हवाले से और क्यों इसका जो रुझान है वो लोगों के अंदर कम पाया जाता है और उसको किस तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं, उस पर रोशनी डालने के लिए I would like to thank all the participants for giving such valuable information in today's conference, in today's session. Thank you so much for joining in. और इन पे मैं इस चीज के ऊपर कहकर इस कॉन्फ्रेंस को एंड करना चाहूंगी कि सिंस आज हम जो थीम लेकर चल रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का, दैट इज डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। तो कोई भी चीज सॉलिडारिटी के बगैर, एक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्शियंस को उजागर किए बगैर आप उसके ऊपर, उसकी अहमियत के ऊपर रोशनी नहीं डाल सकते। So be it clinicians, be it general public, be it policymakers, it cannot be done in seclusion. Everyone has to join hands to make this cause successful. And we hope कि पाकिस्तान के अंदर there comes a day कि हम replacement blood donation के concept से completely move करके voluntary blood donation के concept पे जा सकें. So on this note, thank you so much everyone for joining in and for valuable time. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Thank you.